Later problem में you have to equate the forces and the torque for equilibrium. कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है which is leaning against a wall, अगर हम फोर्सेस मार्क करेंगे तो वेट ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर. Normal reaction on ground. Because point A tends to slip towards right, तो इधर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और ये नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स. If some man is also standing on the ladder, तो man जिस पॉइंट पे है उसका वेट वहां पे मार्क कर सकते हो. बट अगर हम सिर्फ लेडर लेते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या बनेंगी? Upward force is equals to downward force. So upward force is normal reaction from the ground and friction. Downward force is weight of the ladder. Also, कि right side वाली force left side के equal, upward forces is equals to downward force. This is the translational equilibrium condition. Because translational equilibrium is there, so for rotational equilibrium, talk about any point should be zero. When we say talk about any point is zero, so we choose the point where the forces are maximum. So इस point के about talk को zero कर दो. So rotational equilibrium. Talk about any point should be zero, or you can say talk about A should be zero. mg का torque, this is L by 2. अगर ये angle theta है, so this will be L by 2 cos theta. mg into L by 2 cos theta, and this is equals to किसके टॉर्क के साथ बैलेंस करें? mg के साथ किसका टॉर्क मैच कर रहा है? इसके कारण टॉर्क, दिस टोटल डिस्टेंस इज L, दिस विल बी L sin theta प्लस. सो ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगे आपको डिपेंडिंग कौन से वेरिएबल गिवन है. नॉर्मली वॉल स्मूथ दी होती है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो वॉल जीरो हो जाएगी. सिर्फ इन दोनों को इक्वेट करके आंसर आ जाएगा. बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम्स में जनरली वॉल जो दी होगी वो हमें दी होगा दैट वॉल इज फ्रिक्शनलेस. So there is a typical ladder problem जिस पे questions आ सकते हैं आपको. Then is the hinge forces. Hinge forces like simple question तो ऐसे हो सकता है.
So it's hinged at this point. रॉड ऑफ मास m and लेंथ l और ये स्ट्रिंग है. So इस केस में हिंज फोर्स कितनी होगी? फाइंड द हिंज फोर्स. नॉर्मल बताया था कि अगर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं पता तो आप दोनों लोगे हिंज फोर्स की. You have to take horizontal component as well as vertical component. बाकी फोर्सेस अगर मार्क करें जो हमें पता है, mg acting downwards, tension, से एट रैंडम ले ली मैंने n1 n2. अगर ये इक्विलिब्रियम में है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है n2, बिकॉज राइट साइड पे कोई फोर्स नहीं है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक फोर्स है n2. सो इक्विलिब्रियम तभी होगा इफ n2 इज इक्वल्स टू 0. वर्टिकल डायरेक्शन में n1 plus t is equals to mg. For rotational equilibrium, talk about any point should be zero. So अगर मैं इस point के about zero कर दूं, talk about a, mg और इसका perpendicular distance l by 2. This should be equals to t into l. t अगर mg by 2 है तो n1 is also mg by 2. So there's the hinge force, normal reaction, n1. So hinge force is also mg by 2. So ये simple है, जहाँ पे equilibrium में है body move नहीं कर रही. But hinge force can change if the body is movable. कि अगर body move करेगी तो hinge force भी change करती जाएगी. Then you have torque. अगर आप निकाल लोगे तो you have to find कि अगर equilibrium नहीं है, if equilibrium is not there, then you have to find the relation between torque and angular acceleration. So tau is equals to IL for alpha is equals to net torque upon acceleration. इसमें tau is summation tau. This will be, ये किसके इक्वल होगा? Net torque due to external forces, because internal forces का torque balance करेगा.
along axis of rotation. And this is true only for rigid body rotation. Non-rigid body भी applicable नहीं है. Torque for internal forces is not required as they balance. भाई अगर मैं आपको दूं से a rod of mass m in length L it is initially at rest at an angle of 53 degree. If it is released, find the initial angular acceleration, hinge force and linear acceleration. इस पोजीशन से इसको अगर रिलीज कर दिया, it's fixed at this point, hinged है यहाँ से. So if it's hinged at point A, you have to find its angular acceleration, initial angular acceleration, and acceleration, translational acceleration or hinge force. Force exerted, ये दो चीजें कैलकुलेट कर दो चलो सर. Find initial angular acceleration. इस पॉइंट में कितनी फोर्स लगाई रॉड पे, हिंज फोर्स. If it is released, it will fall down due to gravitational torque. mg के कारण torque लगेगा due to which it falls. And angular acceleration will be torque due to gravity upon moment of inertia. About one end निकाल रहे हैं तो moment of inertia is ml square by 3. So करो इसको solve.
So angular acceleration is tau by moment of inertia. Find the hinge force. इससे hinge force निकालो कितनी आएगी. Find the hinge force. Acceleration of center of mass कितनी होगी इस केस में? अगर मैं acceleration of center of mass पूछूं, that means L by 2 into alpha. So it's 9g by 20. इसके दो components. Horizontal direction में और vertical direction में. ये angle 53 initially. तो ये 37. तो AHS. Similarly, vertical is it's 27g by 100. अब निकाल सकते हो hinge force. Forces mark करूं तो this is say N1, this is N2. Hinge forces बाकी forces एक से इसमें छोड़िए अभी, that is the weight. So you get the equation as mg minus n1 is equals to m into av. avh पता है n1 n2 आ जाएगा, then you can solve it. So कोई भी individual part आपसे पूछ सकते हैं. They can find angular acceleration, acceleration of center of mass, horizontal acceleration of center of mass, vertical acceleration of center of mass. So कोई भी एक part आ सकता है जो आपको solve करना आना चाहिए.
हिंज फोर्स तो बिल्कुल लास्ट में निकलेगी जब सारी कैलकुलेशन हो जाएगी. सो व्हाट दे कैन डू इज एमसीक्यूज में वो आपको एसी पहले से दे देंगे, एसी पहले से दे देंगे एंड देन यू हैव टू फाइंड हिंज फोर्स. मतलब न्यूमेरिकल आधे से ज्यादा खुद ही सॉल्व कर देंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन, फाइंड द हिंज फोर्स व्हिच एक्स. या उसका भी सिर्फ एक कंपोनेंट पूछ सकते हैं कि n2 की वैल्यू बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिंज फोर्स कितनी होगी. इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ. तो रोटेशन में पुली का मास दिया हो तो हम चेंज क्या करते हैं. अगर पुली का भी मास दिया है तो यू हैव टू टेक टेंशन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रिंग एज डिफरेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा एंड बाकी न्यूमेरिकल सेम ही रहेगा. लाइक अगर हमारे पास पुली इज हैविंग सम मास, then tensions on both sides of string is different. This pulley requires net torque to rotate. सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे. और हमें दिया है if m2 is greater than m1. So this will move down. ये नीचे मूव करेगा, ये ऊपर मूव करेगा एंड पुली विल रोटेट लाइक दिस. सो एक एडिशनल इक्वेशन बन जाएगी. फ्री बॉडी इक्वेशंस तो सेम रहेंगी दैट m2g minus t2 is equals to m2a, then t1 minus m1g is equals to m1a. और पुली की इक्वेशन क्या होगी. Net torque T2 minus T1 into R is equals to I alpha, or this can be IA by R, or you can say T2 minus T1 is equals to IA by R square. So इन तीनों को ऐड कर दोगे तो you will get the result. कि अगर ऐड कर दें तो you get M2G minus M1G. From this you can find the acceleration. So सिर्फ इतना सा concept है कि अगर पुली का mass या moment of inertia दिया है तो you have to take the tension on both sides to be different. टेंशन डिफरेंट लेके यू फाइंड द नेट टॉर्क और फिर उसको सॉल्व कर दोगे. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी. मोमेंट ऑफ मोमेंटम दो फॉर्मूले पड़े थे, आई ओमेगा एंड आर क्रॉस पी. आई ओमेगा कब यूज करना है, आर क्रॉस पी कब यूज करना है. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर क्रॉस पी कब यूज करना है और आई ओमेगा कब यूज करना है. आर क्रॉस पी हम यूज करते हैं नॉर्मली ट्रांसलेशनल मोशन में और आई ओमेगा यूज करते हैं रोटेशनल मोशन में. So R cross P plus I omega. जनरल फॉर्मूला लेंगे अगर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों है. So we say it's the moment of momentum. So हमने दो कंसेप्ट किए थे. अगर रोटेशनल मोशन है तो we use L is equals to I omega.
If you have both translational and rotational, not necessarily rolling. Rolling is also a special case. Whenever you have both translational and rotational. Let me say it's R cross P plus I omega. I omega इसमें कौन सा लेते हैं? I omega is angular momentum about center of mass. मतलब ICM into omega you can say. इसको ऐसे भी याद रख सकते हो. Because there is always moment of inertia about center of mass. कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे तो इट्स एंगुलर मोमेंटम इज ICM इनटू ओमेगा. सेंटर ऑफ मास खुद मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दिया आपने R क्रॉस P. Conservation of angular momentum is if no external torque, its angular momentum should be conserved. If external torque is 0 and should be constant. इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अभी. पहले अगर हम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कंबाइंड मोशन को डिस्कस करें, देयर कैन बी डिफरेंट केसेस जहां पे आजकल पिछले 1-2 साल से दे आर आस्किंग फॉर द acceleration of any point on a body if it is in both translational and rotational motion. कि अगर हम दोनों मोशन को कंसिडर करें तो एक्सेलरेशन क्या होगी किसी भी पॉइंट की अगर आपको बतानी है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट in combined translation plus rotational motion. द्विज को एंट्री दे दो. क्या? सो द्विज को एंट्री दे दो. द्विज को तो दी थी मैंने, उसको कनेक्ट नहीं होता, ज्वाइनिंग आ रहा है पर उसका शायद नेट स्लो है. उसको बोलो यहाँ तो एक बार ही बंद करके दोबारा से चलाए, बिकॉज मैंने एक्सेप्ट किया हुआ पर वो एंटर नहीं कर पा रहा, शायद उसका नेट स्लो होगा. यहाँ तो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर ले. तो इसमें आपको डिफरेंट केसेस में एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट निकालनी आ सकती है, बिकॉज जब हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो इट इन्वॉल्व्स एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज लीनियर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों होंगी तो देयर कैन बी केसेस कि स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा वेरी कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, स्पीड वेरी कर रही है, दोनों वेरी कर रहे हैं या दोनों कांस्टेंट है. सो ये चारों केसेस में अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी तो कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब मेरे को केस करने हैं 4. फर्स्ट इज omega and speed both constant. Second can be v variable. Omega constant. और दोनों वेरिएबल कि मेरे पास एक बॉडी है विच इज इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन, नॉट नेसेसरली रोलिंग.
फिर एक्सेलरेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स कैसे करेंगे? एट एनी इंस्टेंट यू कैन से स्पीड इज v, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन इज a, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी मतलब कि a ओमेगा r अल्फा इनकी टर्म्स में आंसर निकालने हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट करो सॉल्व, लेट्स सी क्या आंसर निकालते हो। कैसे करें इसको? फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो ओमेगा एंड v बोथ कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन सबसे आसान है निकालनी हर पॉइंट की। अगर ओमेगा और v दोनों कांस्टेंट हैं, v स्पीड डिनोट कर रही है, ओमेगा और v दोनों कांस्टेंट तो क्या होगा? बेसिकली हमारे पास ये कंसेप्ट है कि ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इज डी ओमेगा बाई डी टी। इस केस में एटी भी जीरो है, अल्फा भी जीरो है। एटी भी जीरो है, अल्फा भी जीरो है, मतलब हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज ओनली सेंट्रीपिटल व्हिच इज लेफ्ट, आर ओमेगा स्क्वायर। बिकॉज इसमें और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो आर ओमेगा स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। अब सेकेंड इज, अगर v वेरिएबल है, v वेरिएबल है मतलब एटी इज नॉट जीरो, तो ले लेते हैं लेट ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी ए से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। So, अब हर पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? आपके अकॉर्डिंगली कौन से पॉइंट की सबसे ज्यादा होनी चाहिए? अगर मैं से इन पॉइंट्स को जैसे मार्क कर दूं, मान लो ए, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट की होगी और सबसे कम किस पॉइंट की होगी? बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और रोटेट भी कर रही है। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मतलब दोनों को कंबाइन करना है आपने। हमारे को दिया है कि इसकी लीनियर एक्सेलरेशन है, तो हर पॉइंट की लीनियर एक्सेलरेशन ए तो है ही है। In addition to it, it has centripetal acceleration. Alpha is not there. So इस पॉइंट की एक्सेलरेशन सबसे कम होगी बिकॉज a and r omega square are oppositely directed. a पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी because they are in the same direction. So a plus r omega square and a minus r omega square. और इन दोनों पॉइंट पे वेक्टर एडिशन हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इधर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो ये तो होगी कि अगर v वेरिएबल है। नेक्स्ट, अगर v कांस्टेंट है, ओमेगा वेरिएबल है, मतलब v कांस्टेंट है मींस 80 जीरो है और अल्फा नॉन जीरो है। अब एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर अल्फा नॉन जीरो होगा
इसको तो आपने चेंज नहीं करना, ये हर पॉइंट की सेम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इन एडिशन टू इट हर पॉइंट पे एक एक्सेलरेशन और अल्फा टेंजेंशियल। इससे क्या पता चला? चारों पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है? बिकॉज चारों पॉइंट्स, चारों या इसके अलावा और भी जितने भी पॉइंट्स लेंगे, आर ओमेगा स्क्वायर एंड ए सी, आर ओमेगा स्क्वायर इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन and AT is tangential. So total acceleration at all the points will always be under root of AC square plus AT square. मतलब अगर ओमेगा और v दोनों कांस्टेंट है, फर्स्ट केस जो किया था, हर पॉइंट के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर v कांस्टेंट है और ओमेगा वेरिएबल है तो भी हर पॉइंट का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम ही आएगा। कि पहले था कि सिर्फ AC था, अगर ओमेगा वेरिएबल हो जाएगा तो हर पॉइंट की एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो दो केसेस हो सकते हैं जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होगा। ये जेई मेंस में क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में कि अगर ओमेगा, मतलब उन्होंने कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहेगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में। सो दो केस ट्रू थे, ओमेगा एंड वी बोथ कांस्टेंट और v कांस्टेंट एंड ओमेगा वेरिएबल, देन आल्सो इट विल बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स। लास्ट केस कर दो, अब ये तो आसान है। अब सारे कर लिए तो इसका फटाफट आंसर लिख दो। अगर दोनों वेरिएबल हैं तो दोनों वेरिएबल हैं तो बेसिकली तीन एक्सेलरेशन मार्क करनी है। तीन एक्सेलरेशंस मार्क करनी है मतलब सबसे पहले तो आर ओमेगा स्क्वायर ही मार्क कर दो। Then alpha r is also there. और फिर लीनियर एक्सेलरेशन। देखो ये चारों केस समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे? अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है if both omega and v are variable, बिकॉज it क्वाइट सिमिलर है जैसे हमने वेलोसिटी निकाली थी हर पॉइंट की। बिकॉज वेलोसिटी में भी हमने यही किया था। इसी का एक स्पेशल केस हो जाएगा रोलिंग। Translational motion means velocity of all points is same. सेंटर की वेलोसिटी अगर vc है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी vc होगी ट्रांसलेशन में। If body rotates with angular velocity omega,
कंबाइन करेंगे तो इस पॉइंट के वेलोसिटी vc प्लस r ओमेगा अंडर रूट ऑफ vc स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमारा जो मेन इंटरेस्ट होता है दैट इज इन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिकॉज इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बिकॉज इट डिपेंड्स r ओमेगा ज्यादा है या vc ज्यादा है। अगर vc ज्यादा होगा तो उस केस को क्या बोलते हैं? दो केस थे ना, तीसरा vc इक्वल टू r ओमेगा भी हो सकता है, दैट इज प्योर रोलिंग। सो पहले अगर हम केस करें से vc ग्रेटर देन r ओमेगा की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है vc वो r ओमेगा से ज्यादा है, सो देयर इज अ केस व्हिच इज नोन एज, इसका कुछ नाम था ना, vc is greater than r ओमेगा, क्या बोलते थे इसको? इट्स अ केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग मतलब vc अगर r ओमेगा से ज्यादा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉरवर्ड स्लिप करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो कौन सी होगी? बैकवर्ड। अगर vc is less than r omega that is called backward slipping. Backward slipping मतलब point of contact slips backward, तो frictional force will be forward. So frictional force की डायरेक्शन जो है इस केस में अगर हम लें से vc greater than r omega, this is called forward slipping. आपको न्यूमेरिकल्स में दिया होगा अगर विदाउट स्लिपिंग मतलब इट्स अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। Forward slipping and friction is backward. This is called backward slipping. Frictional force is forward. Because उसने relative motion को oppose करना है। इसमें फ्रिक्शन कितनी किस डायरेक्शन में? इन दोनों में जिसे इट्स काइनेटिक फ्रिक्शन is equals to mu kn. If vc is equals to r omega, तो point of contact is at rest, तो friction is static friction. वैल्यू इसकी the static friction is self adjusting. सेल्फ एडजस्टिंग का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके म्यू एन तक फ्रिक्शनल फोर्स कैन हैव एनी वैल्यू, और डायरेक्शन डायरेक्शन इज आल्सो सेल्फ एडजस्टिंग। फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है, आप कोई भी एक डायरेक्शन लेके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दोगे। अगर आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है मतलब आपकी डायरेक्शन ठीक है, नेगेटिव आती है मतलब आपकी डायरेक्शन गलत है, बट इन एनी केस फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन म्यू एन।
एंड जब आप ये केस करते हो जिसमें इसमें हमने सारे में एज्यूम किया है कि सरफेस इज एट रेस्ट, सरफेस को हमने रेस्ट पे माना है। ऐसा केस हो सकता है कि v is equal to r omega but it's not a case of pure rolling, v is equal to r omega but it's not a case of pure rolling। कि अगर मैं ऐसे लूं, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म खुद भी मूव कर रहा है। प्लेटफॉर्म खुद भी मूव कर रहा है, इधर वेलोसिटी vp। इस केस में v is equal to r omega is not a case of pure rolling। प्योर रोलिंग के लिए होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी एट रिलेटिव रेस्ट। अगर मैं इसमें डायग्राम बनाता हूँ, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी है, and its angular velocity omega, linear velocity vc, इस पॉइंट की वेलोसिटी vc माइनस आर ओमेगा। इधर जो प्योर रोलिंग होगी, point of contact should be at rest relative to surface। That means vp should be equals to, or vc is not equal to r omega, so vc minus r omega should have some value for pure rolling। So pure rolling का concept है कि point of contact should be at relative rest। Relative rest in same condition आगे extend हो जाएगी। If surface is at rest, rolling के लिए a is equals to r alpha। If surface is accelerating, with a1, then a minus r alpha should be equals to a1। कि प्योर रोलिंग के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एक्सेलरेशन वही होनी चाहिए जो सरफेस की एक्सेलरेशन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो सरफेस की वेलोसिटी है। So it's not always v is equals to r omega, वो एक कंडीशन है v is equal to r omega when surface is at rest। surface rest पे नहीं है तो फिर ये डिफरेंट केस होगा। अगर मैं आपसे बोलूं से बॉडी प्योर रोलिंग में है on a surface which is at rest, velocity at any point बतानी है, velocity of any point on the surface, and surface at rest।
इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? या अगर मैं वेलोसिटी आफ्टर टाइम t पूछ लूं, when it starts pure rolling find velocity after time t. When it starts pure rolling find its velocity after time t. जनरल निकाल दो, उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे. फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट p. प्योर रोलिंग का केस है. क्या है आंसर? अगर प्योर रोलिंग का केस है, जिस भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो इस पॉइंट की नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? And because it's a case of pure rolling, r omega is also v. Vertical velocity is v sin theta. Velocity of point P is तो इसको आप जनरल याद भी रख सकते हो, 2v sin थीटा बाय 2. आफ्टर टाइम t बतानी होती तो थीटा को ओमेगा डी पुट कर दो. We can also write it as 2v sin omega t by 2 और 2r omega sin omega t by 2.
फिर एक, इफ यू रिमेम्बर, हमने केस किए थे, दो केस किए थे। एक में बॉडी को रोटेट करके सरफेस पे रखा था एंड इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग आफ्टर सम टाइम. Second case we did was we gave initial velocity v naught and you have to find the time after which it starts pure rolling. कि हमने translational velocity दी है, time after which it starts pure rolling या velocity when it starts pure rolling. मेरे पास एक से cylindrical body है, solid cylinder. और फ्रिक्शन है सरफेस पे. आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है. Work velocity when it starts pure rolling and work done by frictional force. Velocity when it starts pure rolling and work done by frictional force. पहले प्योर रोलिंग निकालो. वेलोसिटी व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. वेलोसिटी व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. अगर मैं इसको जनरल कर दूं, से लेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी बी, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो सी की वैल्यू हाफ, स्फीयर है तो 2/5, डिस्क है तो हाफ, हॉलो स्फीयर है तो 2/3, सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है. एंड इट स्टार्ट्स, यहां तक आते आते इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग शुरू होगी मतलब इसकी वेलोसिटी v, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड v इज इक्वल्स टू r ओमेगा. मैंने एक पॉइंट मान लिया a. फोर्सेस जो एक्ट कर रही थी, वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन. Talk about point A will always be 0 because नॉर्मल रिएक्शन और वेट का टॉक बैलेंस कर जाएगा. फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ही यहां से पास करेगा. इसे टॉक अबाउट पॉइंट ए विल बी 0. मींस एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज कंजर्व्ड. पहले एंगुलर मोमेंटम है mv नॉट, आई ओमेगा नहीं है बिकॉज ओमेगा 0 है. फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज mvr plus I omega. जनरल करें तो and omega is v by r. So you get v is equals to, so आप इसलिए इस फॉर्म में इसको याद रख सकते हो कि अगर आपने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दी है v नॉट, तो वेलोसिटी व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग इज v नॉट अपॉन 1 प्लस c. कि अगर हम केसेस करें से फॉर सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क, c is equals to half for solid sphere, 2/5 पुट करोगे तो इट विल बी
These are the velocities when it starts pure rolling. अगर मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन बताना है तो कितना होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स till it acquires velocity v, कुछ टाइम के बाद ये वेलोसिटी v एक्वायर करेगा व्हेन इट्स प्योर रोलिंग। उस टाइम तक वर्क डन कितना और उस टाइम से इन्फिनिटी तक कितना? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। कर दो सॉल्व इसको, तो इजी है। सॉलिड सिलेंडर का केस लेके सॉल्व कर दो। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इफ इट्स अ सॉलिड सिलेंडर, work done by frictional force if it is a solid cylinder. कैसे करें? We can say work energy equivalence theorem लगाएं तो work done by frictional force is equal to change in kinetic energy. So change in kinetic energy निकाल लो कितना है, that will be work done by frictional force. देखो सॉल्व करके क्या आता है आंसर। Initial kinetic energy is half mv naught square. When the body starts pure rolling तो kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? Because initially it's translational motion only. रोलिंग मोशन में फॉर्मूला था k is radius of gyration. सॉलिड सिलेंडर है तो k square by r square is half. v हमने निकाल लिया, it's 2/3 v naught. So it's 4/9 into 3/4. So loss of energy निकालो, वर्क डन बता दो।
In this question, sometimes they ask the translational work done or rotational work done. इसमें से कौन सा वर्क डन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? ट्रांसलेशनल वर्क डन, विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? और रोटेशनल वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ट्रांसलेशनल वर्क डन एंड रोटेशनल वर्क डन. लीनियर स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, सो वहां से पता चल जाता है. लीनियर स्पीड इनिशियली थी v नॉट, फाइनल है 2/3 v नॉट. Because linear speed is decreasing, we say translational work done will be negative. Translational work done will be change in linear kinetic energy. Whereas rotational work done will be positive because initial angular velocity 0 है, final angular velocity omega naught है. So इस केस में ट्रांसलेशनल वर्क डन नेगेटिव आएगा, रोटेशनल वर्क डन पॉजिटिव आएगा, टोटल वर्क डन उन दोनों का सम होगा. बिकॉज अगर इसमें मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेशनल वर्क डन पूछ रहा था टोटल वर्क डन की जगह, अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशनल वर्क डन की बात करें, that will be change in linear kinetic energy. This will be the translational work done. अगर rotational work done निकालेंगे तो change in rotational kinetic energy. Rotational work done by friction. Initial 0 है. This is 1/4 mv square. V is 1/9 mv naught square. और जो टोटल वर्क डन आ जाएगा दैट शुड बी 1/9 को 2/18 लिख दिया मैंने, सो दिस शुड बी -3 सो -mv नॉट स्क्वायर बाय 6 जो वैसे आ रहा था. टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो अगर सिर्फ ट्रांसलेशनल वर्क डन पूछेंगे तो चेंज इन ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल वर्क डन पूछेंगे तो चेंज इन रोटेशनल एनर्जी. और ये था कि अप टू when the body starts pure rolling, after that work done is work done after it starts pure rolling. Work done by frictional force, because frictional force तो एक्ट करेगी. अगर प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग बट इट कैन एक्ट. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है व्हेन द बॉडी इज इन प्योर रोलिंग? Once the body starts pure rolling, work done by frictional force.
सो लिखो इसका कंसेप्ट, वंस द बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, once the body starts pure rolling, general concept is question से related नहीं है, once the body starts pure rolling, static friction acts which is self adjusting, static friction acts which is self adjusting, therefore static friction acts which is self adjusting, therefore work done will be zero, therefore work done will be zero because zero क्यों होगा? वर्क डन का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था वर्क पर एनर्जी में? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एस क्या था उसमें? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस में एस क्या था? हम उसको डिस्प्लेसमेंट लेते थे, बट इन एक्चुअल इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सो इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज एट रेस्ट, सो वर्क डन विल ऑलवेज बी जीरो. वर्क डन बाय is zero because इसका रीजन लिख लो, because point of application of force always remains at rest, because point of application of force always remains at rest, because point of application of force always remain at rest. नेक्स्ट इज टॉपलिंग. टॉपलिंग का कंसेप्ट क्या होता है? बॉडी टॉपल कब करती है और कब स्लाइड करती है? मेरे पास एक बॉडी है ऐसे which is placed on horizontal surface. मैंने इस पे फोर्स लगाई F at a distance h. इन फ्रिक्शनल फोर्सेस में हुए नॉर्मल रिएक्शन मार्क कर सकते हो. अब प्रेडिक्ट कर रहा. कंडीशन फॉर टॉपलिंग क्या होती है? बॉडी स्लाइड कब करती है और टॉपल कब करती है? बिकॉज घर में अगर आप किसी हैवी सूटकेस को मूव कर रहे हो, बॉक्स को मूव कर रहे हो, स्मूथ सरफेस है तो वो स्लाइड करता है, और अगर हैवी है तो वो टॉपल, रफ सरफेस है तो टॉपल कर जाती है बॉडी. अगर आपके पास हैवी बॉक्स है, आपने इसे लॉन में रख के उसको धक्का मारा तो वो स्लाइड करने की जगह टॉपल कर जाता है. आपके पास स्मूथ सरफेस है तो वो स्लाइड कर जाता है. सो बेसिकली हम दो फोर्सेस का ऑब्जर्व करते हैं. अगर ये टॉपल करेगा तो इट विल टॉपल अबाउट पॉइंट बी. ये अगर टॉपल किया तो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा. ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ये बॉडी ऐसे टॉपल कर जाएगी. अब ये जो फोर्स है F जो मैंने लगाई, दिस ट्राइज टू टॉपल द बॉडी एंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी ट्राइज टू अपोज इट. एक फोर्स हमें पता है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द बॉडी.
बॉडी स्लाइड तभी करेगी अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगी म्यू एम जी से ज्यादा. बॉडी विल टॉपल इफ torque due to applied force is greater than torque due to weight of the body. Torque due to applied forces F into H. Torque due to gravity is mg into b by 2. That means F should be greater than mg b by 2h. कि अगर फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो टॉपल कर जाएगी. अब फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल, अगर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइडिंग से ज्यादा है तो बॉडी विल स्लाइड. बिकॉज इसमें स्लाइडिंग के लिए कम फोर्स चाहिए. और अगर ऑपोजिट होता बॉडी विल टॉपल. अगर ये फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है. मैंने नॉर्मल रिएक्शन को आप देखो मार्क नहीं कैसे अपवर्ड एरो मार्क किया. अपवर्ड एरो मार्क करने का रीजन क्या होता है? मैंने पॉइंट मार्क नहीं किया वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है. आई जस्ट मार्क्ड इट इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो उसको नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे एक्ट करेगा या नहीं करेगा? नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे एक्ट करेगा या कहीं और एक्ट करेगा? जब टॉपल कर रहा होगा तो बी पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा. जब टॉपल करेगा तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन शिफ्ट करता रहता है सेंटर से बी की तरफ. सो जब टॉपलिंग शुरू होगी तो बी पे एक्ट करेगा, बट वो पहले भी अपनी पोजीशन चेंज करता है. जब टॉपल नहीं कर रही बॉडी तो भी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे एक्ट नहीं करता. इट शिफ्ट्स फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स बी. तो इसलिए मैंने सिर्फ अपवर्ड एरो लगा के छोड़ा. सो टॉपलिंग का एक केस हो गया. सिमिलरली इसको इंक्लाइन प्लेन पे भी कर सकते थे. द ओनली डिफरेंस इज इंक्लाइन प्लेन पे सिलेंडर का क्वेश्चन आता है, सिलेंडर कब टॉपल कर जाएगा. तो उसमें टॉपलिंग फोर्स इज mg sin थीटा. सिर्फ हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, बट mg sin थीटा इज द टॉपलिंग फोर्स. तो उसके कारण बॉडी टॉपल करेगी. कि mg cos थीटा टेंड्स टू अपोजिट mg sin थीटा के कारण वो टॉपल करेगा. तो वो इंक्लाइन प्लेन पे भी सेम डायग्राम बन जाता है इसका. एंड रोलिंग क्या होता है? रोलिंग और टॉपलिंग में रिलेशन क्या होता है? इसमें बेस एरिया जितना बढ़ता जाएगा, मतलब बी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल भी बढ़ती जाएगी. बिकॉज F should be greater than mg b by 2h. So larger the value of b, larger will be the force required to topple. मतलब अगर हमारे पास वाइड बॉडी है जिसके लिए b की वैल्यू ज्यादा है तो उसको टॉपल करना मुश्किल है. b की वैल्यू कम है तो टॉपल करना आसान है. और किन फैक्टर्स पे टॉपलिंग डिपेंड कर सकती है? बिकॉज अगर हम ले रहे हैं कि बी बढ़ने से फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल बढ़ती है, बी कम होगा तो फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल कम हो जाएगी. अगर हमारे पास स्फीयर है और उस पर मैंने फोर्स लगाई तो बी इज ऑलमोस्ट जीरो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सिर्फ. तो रोलिंग को हम लेते हैं इट्स अ स्पेशल केस ऑफ टॉपलिंग. वो बेसिकली बॉडी को आप टॉपल कर रहे हो. क्या फोर्स लगाओगे टॉप पे एंड इट स्टार्ट्स टॉपलिंग. कि हमारे पास अगर सिर्फ बॉडी है विच इज स्फेरिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप, अगर हम कोई शेप लेते हैं उसकी, मैंने यहाँ पे अगर फोर्स लगाई है तो ये जो बेस है बी, दिस इज वेरी स्मॉल. सो हम लेंगे कि ये बेसिकली बॉडी टॉपल कर रही है. इस पॉइंट के अबाउट इट्स अ टॉपलिंग, कि टॉपल करेगी बॉडी. सो रोलिंग को हम लेते हैं इट्स अ स्पेशल केस ऑफ टॉपलिंग. ये जो exert a force because B is negligibly small, तो आप कुछ भी फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी टॉपल करना शुरू हो जाएगी. बिकॉज B और H पे डिपेंड कर रही थी कि टॉपल करेगी कि नहीं करेगी.
सो नेक्स्ट इसमें आता है कि इफ यू मूव टू द कोलिजन मतलब जहाँ पे रॉड कोलाइड्स, बॉल कम्स एंड स्ट्राइक्स द रॉड एंड कोलाइड्स, उसके केस हो सकते हैं। केस हो सकता है कि बॉल ने आके स्ट्राइक किया, बॉल रुक गई और रॉड रोटेट करने लग गई है, और यू कैन हैव द केस वेयर बॉल स्ट्राइक्स द रॉड एंड इट कम्स टू रेस्ट, स्टिक कर गई रॉड के साथ, फिर रोटेट कर रही है। सो वो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जिसमें हम कोलिजन्स को स्टडी करेंगे। तो अभी +1 की क्लास है, एक क्लास और चाहिए होगी, इसके लिए कब लगाएं? आज किसी और टाइम या कल? बिकॉज वो कोलिजन वाले केस रह गए अभी, where the ball collides with a rod. So conservation of angular momentum जहाँ पे हमने अप्लाई करना है। कल आपकी अराउंड 10-11 कोई क्लास है? 10 और 11, या स्कूल का एग्जाम तो नहीं है किसी का? मैं भी फिर ग्रुप में डाल दूँ अराउंड 10:30, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, फिर नहीं तो कल 10:30 to 11:30 1 घंटा लगेगा, बट 1 घंटा चाहिए होगा वो क्वेश्चंस करने के लिए, तो कल क्लास लगा लेते हैं उसकी। ये वाला आज वाला सारा एक बार दोबारा से देख लेना बेशक।